session with Anand ji. Anand ji, many thanks for being with us today. आपका हार्दिक स्वागत है. This session has been organized by Cambridge University Bharatiya Society, a student society founded last year by Dr. Krishna Sharma and myself. The society aims to create homely atmosphere for Indian students and Indian nationals residing in Cambridge. Puri ji, the founder of Sumit Foundation, for joining us today as well. There are some people who work silently and let their deeds do all the talking. Mona ji is one of them. Through shouldering the responsibility of a big educational group, her passion to work for students from the underprivileged backgrounds is what makes her different and special. Inspired by Anand Kumar ji of Super 30 fame, who's with us today, she has taken a number of initiatives to help the poor under the banner of Sumit Foundation. Besides working on all-round nurturing of students from poor sections, along with helping them develop their English and communication skills, she has also been involved with skilling and empowering women to make them self-reliant through Beti Bachao, Beti Padhao mission. Finally, although Mona ji is a recipient of several honors and awards, she prefers to remain out of media glare. Once again, I would like to thank Mona ji for being with us. Can't. Thank you. Okay, great. Thank you. A very good evening to all joined with us today and a warm namaskar from India. First of all, I would like to thank Dr. Krishna Sharma ji and Varun ji for inviting us and having us on this platform. Dr. Krishna Sharma ji, mentor and co-founder of Cambridge University, Bharatiya Society, for giving me this opportunity to address the August gathering on this platform. Dr. Sharma, he is distinction holder from St. Stephen's College, New Delhi, along with a memorial prize for his overall academic performance and selfless service. He has a list of achievements and all of them bring accolades to our country. Has his actions and positions held always rooted deep into serving the Indian society at large. Masters at University of Oxford and later doctorate in chemistry from Trinity College at the University of Cambridge. He is currently a research fellow working on the discovery of new sustainable organic chemical reactions, actively involved in extracurricular activities and outreach activities within India and UK. In 2015, he served as the president of graduate students at Trinity College, Cambridge University, and later also served as a vice chair of the Cambridge University Commonwealth Society. Recently, he was selected as UK Indian Young Leader Participant at the 5th UK India Conclave. He has been welcoming and serving the Indian community in Cambridge since 2014. Dr. Krishna Sharma sir, we welcome you and thank you also and your committee for organizing such an event. Over to you, Dr. Sharma. Thank you very much, Mona Puriji, for your very kind words. And so, as you all can see, we have with us today our special guest, Sri Anand Kumar ji, who I'm sure all of you already know and are eagerly waiting to hear from. So without taking much of your time, I would just like to share a quick brief of his inspiring life journey. So, Sri Anand Kumar ji is a noted Indian mathematics teacher from Patna in the Bihar state of India. But more than being a teacher, he is also the man behind pioneering a silent social transition that he is ushering in through his revolutionary education initiative, Super 30. So let's all know how it all began. His father, who was a low-paid employee in the Postal Department of India, his sudden demise cut off the family's main source of income. His mother sold papad to make the ends meet. Anandji would go sell and deliver these himself in the evenings. Being a mathematics enthusiast, Anandji would work on solving mathematical problems
and writing articles during the daytime. Soon his articles got published in reputed magazines and journals. For having been such a brilliant student of mathematics, he got an opportunity to pursue higher education at Cambridge University in 1994, but he could not take up his place due to his poor financial situation. Having witnessed such extreme financial hardship since his childhood, he felt the pangs of poverty so much that he decided to do something to meet the educational needs of the underprivileged students of the community, who invariably fade away without getting the right opportunities at the right time. And this precisely became the reason for him to start his Super 30 program, wherein every year Anandji would personally provide mathematics coaching to 30 bright and deserving students hailing from the less privileged sections of the society to prepare them for different engineering entrance examinations in the country. In the 17 years of this program, a phenomenal 510 students have made to the top technical institutes of India. What is remarkable about this achievement is that many of them are first generation learners coming from rural, extremely poor background with indifferent school education. They get free food, lodging, and above all, free coaching. Anandji supports the entire exercise all by himself, in which his entire family supports him. Many channels, leading newspapers and magazines from around the globe have tried to capture the essence of Super 30. Discovery Channel made an hour-long documentary on Anandji and Super 30 and described it as a revolutionary experiment to bring about social change. Time magazine has selected his school in the list of best of Asia. Anandji is the recipient. So my mic is on, right? People can hear. Okay. Anandji is the recipient of several prestigious awards and has also been honored by various leading organizations of this country for his rich social contributions to the society. And to close with something I'm sure most of you would have already watched by now, a super hit blockbuster biopic on Anand Kumarji was released last year in July 2019, starring Bollywood superstar Hrithik Roshan, portraying the character of Anand Kumarji. So, dear Anandji, we are very pleased to have you with us today on this platform. We welcome you and look forward to learning from your pearls of wisdom. Our registered participants have shared plenty of questions with us. We would like to seek your views on them during our interaction today. So, आनंद जी, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहले आ चुके हैं. पिछले साल आपने विश्व की सबसे पुरानी डिबेटिंग सोसाइटी कैम्ब्रिज यूनियन में संवाद भी किया था. इस साल कोविड-19 की महामारी की वजह से हम लोग आपसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं. इस संदर्भ में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कृष्णा जी आपको कि आप में जो हमने जज्बा देखा कुछ अच्छा काम करने के लिए, कैम्ब्रिज के लिए, भारतीय लोगों के लिए, वो अद्भुत था. लोग दरअसल में ऐसा सोचते हैं हमारे देश में कि कोई व्यक्ति अगर हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या MIT हार्वर्ड जाता है तो देश प्रेम उसमें नहीं. लेकिन ये एक बार फिर आपने गलत सिद्ध किया. तो ये बात मैं लोगों तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचाना चाहता हूं कि कृष्णा जी जैसे लोग इंडियन कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए जो करते हैं वो अद्भुत है. और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और इनके प्रति रिस्पेक्ट है इस काम को करने के लिए. जब मैं पहली बार एक और किसी कारणवश कैम्ब्रिज पैसे के अभाव में नहीं जा सका था एडमिशन के बावजूद, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि फिल्म रिलीज होने के ठीक एक आध महीने पहले मुझे कैम्ब्रिज में जाके बोलने का मौका मिला. दूसरी दफा तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था कैम्ब्रिज यूनियन का, कई 100 लोग वहां पर उपस्थित थे और वहां कृष्णा शर्मा जी भी थे. तो बहुत अच्छा लगा. हम लगा जैसे सपने पूरे हो जाते हैं. इस सपने के पूरे करने के लिए मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी कठिनाइयां मैंने उठाई, कितने रास्तों में पत्थर बिछे थे, कितने हमारे रास्तों में कांटे बिछाए गए, ये कोई नहीं देखा. लेकिन आज अच्छा लगता है कि तीसरी दफा मैं कैम्ब्रिज के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं. जहां मैं कभी पढ़ने नहीं गया था वहां मुझे बोलने का मौका मिलता है, आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है. तो ये हमारे लिए गौरव की बात है. धन्यवाद आनंद जी. ओवर टू मोना पुरी जी. सॉरी.
सर इस प्लेटफॉर्म पे वी वुड लाइक टू नो कि जैसे आपने बोला कि सपना टूट जाए, अभी जैसे कैम्ब्रिज का आपका पूरा जाने का हो गया था एंड यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी आल्सो, बट यू कुड नॉट गो बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फादर की भी अचानक डेथ हो गई। तो क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको निराशा नहीं हुई थी, या वहाँ कैसे उस समय आपने किया, या हमने मूवी में भी देखा, परंतु वी वुड लाइक टू नो कि व्हाट डू यू हैव टू से रिगार्डिंग दैट, कि सपना टूटने पे निराशा होती है तो कैसा महसूस होता है? देखिए, सपने जब टूटते हैं तो निराशाएं होती हैं, लेकिन ये निराशाएं, ये जीवन के चैलेंजेस आपको और मजबूत बताती है। ये तो इम्तिहान की तरह होता है, एग्जामिनेशन की तरह होता है, कि जब आपके सामने परेशानियां आती है तो आप उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से रियलाइज करते हैं, किस तरह से फील करते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि प्रकृति आपका साथ देती है और साथ साथ प्रकृति विरोध भी करती है। प्रकृति से विरोध करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बारिश होती है, आप उसके बचाव के लिए घर बनाते हैं, ठंड होता है कंबल और रजाई बनाते हैं, एसी लगाते हैं। तो प्रकृति से आप जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, आने वाली परेशानियों को जब तक आप उसका सामना नहीं करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो निराशाएं तो आती है जिंदगी में, आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, निराशाएं आते हैं, लगते हैं कि अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, अब आगे कुछ भी संभव नहीं। वहीं से जिंदगी नई शुरू होती है। इस बात का ख्याल हमने हमेशा रखा है और प्रयास किया है कि निराशाओं से निकल के एक नया सवेरा की ओर हम लोग बढ़ सकें। सर यहाँ क्या ये कहा जाए कि अगर आप कैम्ब्रिज चले गए होते तो कैसा होता, बट ये भी तो है कि आप कैम्ब्रिज नहीं जा पाए, तो आपने इतने एस्टीम्ड प्रोग्राम सुपर 30 का जन्म हुआ, आपने उसका निर्माण किया, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट बाराक ओबामा के स्पेशल एनवॉय ने भी, जैसे कि अभी डॉक्टर शर्मा ने भी बताया, रशाद हुसैन termed as the best institute in the country, and टाइम्स मैगजीन में भी उसको सेलेक्ट किया सुपर 30 के स्कूल को द बेस्ट स्कूल in the list of best of Asia 2010. And then Discovery Channel also made an hour's documentary on Super 30. New York Times में भी आपकी कहानी लिखी गई। तो क्या कैम्ब्रिज ना जाना हुआ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? Was it good or was it bad? बहुत ही गंभीर सवाल है, इसका जवाब एकदम एग्जैक्ट देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर मैं कैम्ब्रिज जाता तब भी कृष्णा शर्मा जी से मुलाकात होती, और नहीं गया तब भी मुलाकात होती। तो जो चीजें अच्छी होनी रहती है ना, वो हर हाल में होती है। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखेंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मैं जाता, हो सके वहां जाता, बहुत और अच्छा करता, कुछ मैथमेटिक्स में नया फार्मूले बनाता, नया रिसर्च करता, कुछ दुनिया और होती। लेकिन जो होता है सो अच्छा होता है। मैं नहीं गया तब भी अच्छा हुआ। यहाँ पर मैंने सुपर 30 जैसे इनिशिएटिव लिया। यहाँ पर बच्चों जिनके पास कुछ भी नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, संसाधन नहीं था, उनको अपने घर में अपने परिवार के साथ रखकर पढ़ाया लिखाया। और आज उन बच्चों में से कुछ बच्चे MIT, कुछ बच्चे हार्वर्ड। एक बच्ची है वो मोनिका, वो तो यहाँ तक भी कैम्ब्रिज में भी कुछ दिन के लिए पढ़ने आई थी। तो हमारे सपने दूसरे बच्चों के जरिए पूरे हो रहे हैं। हमारे अधूरे सपनों में वो बच्चे रंग भर रहे हैं जिनके पास जीवन में कुछ नहीं था। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है? तो मेरा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये आप लोगों तक संदेश पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप परिस्थितियों से घबराए नहीं, उसका मुकाबला करें, सामना करें, और हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में एक अवसर ढूंढने का तलाश करें, कुछ काम करें। सर दिस इज राइटली सेड, जैसे आपने भी कहा एंड कहीं हमने पढ़ा था कि इन एडवर्सिटीज आल्सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी के बीज उसी में ही छुपे होते हैं, बस ढूंढने वाले की नजर चाहिए होती है। सर आजकल के एडवर्सिटी माहौल में व्हाट डू यू फाइंड एज एन अपॉर्चुनिटी? यू हैव सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स वेरी एडवर्स, तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी यू फाइंड इन दिस? देखिए, हम
कोई इस तरह का कोई ज्ञाता नहीं है, कोई इस तरह का मेरे पास नॉलेज नहीं है कि क्राइसिस में कैसे फाइट किया जाए। बट जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बेसिस पर मैं जरूर बता सकता हूं कि जो खराब परिस्थितियां हैं, जो आपका क्राइसिस का दौर है, उससे कैसे आप उभरे, उसमें भी कैसे अच्छा करें। देखिए, जब हमारे पिताजी का डेथ हो गया था, सडन डेथ, कैम्ब्रिज नहीं जा पाए थे ड्यू टू लैक ऑफ मनी, तो हमेशा मुझे ये लगता था अब नया क्या किया जाए, अब आगे का जीवन क्या है। लेकिन उसी में रास्ता खोज कर एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया। ये सुपर 30 मेरा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, कोई बड़ी योजना नहीं थी। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि यही सुपर 30, यही मेरा इनिशिएटिव, जो कि मैं कभी कैम्ब्रिज नहीं जा पाया पढ़ने, वो कैम्ब्रिज में बोलने का मौका देगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बस ईमानदारी के साथ काम करते गया और चीजें अच्छी होते गई। बच्चे अच्छे अच्छे जगहों पर पहुंचे, आईएएस आईपीएस बने, आईआरएस बने, अच्छे अच्छे जगह पर साइंटिस्ट बने। कृष्णा शर्मा जी को याद होगा कि मुझे उस समय बहुत खुशी हुई जब मैं कैम्ब्रिज यूनियन के तरफ से बोला। अब बोलने के बाद मैंने देखा कि बगल में मेरा शिष्य शशि नारायण खड़ा है, जो कि गूगल में लंदन में साइंटिस्ट था। तो ऐसे वैसे बच्चे काफी लोग हैं जो अच्छे अच्छे जगहों पर पहुंच गए। तो इस क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी कैसे निकाला जाए, ये मैंने सोचा। तो इस जो अभी माहौल है, उस माहौल से आप डरे नहीं, उस माहौल से आप घबराए नहीं, उस माहौल को कैसे आप अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, अपने अपने तरीकों से इसको सोचे। जैसे देखिए, जैसे ही लॉकडाउन इंडिया में शुरू हुआ, हमने लिखना स्टार्ट किया, कॉलम दैनिक भास्कर में, नवभारत टाइम्स में डेली लिखना स्टार्ट किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर लिखना वेबसाइट पर स्टार्ट किया और धीरे धीरे काफी लोकप्रिय हुआ। और पिछले 2-3 महीनों का मैंने बहुत ही मीनिंगफुल यूज किया, बहुत इसका पॉजिटिव यूज किया और बहुत ज्यादा बच्चों से कनेक्ट हुआ वेबिनार के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू। पहले मैं कभी नहीं इस तरह से वर्चुअली लोगों से बातचीत करता था, लेकिन सीखा, समझा। यह तो हर जगह आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हर तरीके से आप लाभ उठाइए। ये जो अभी रात है कोरोना वायरस की पूरी दुनिया पर, ये रात कोई हमेशा रहने वाली नहीं है, सवेरा होना ही है। और याद रखिएगा कि रात जितनी गहरी हो रही है, जितनी अंधेरी हो रही है, सवेरा के हम लोग उतना करीब है। Over to you, Krishna ji. ओके, थैंक यू। आनंद जी, आपने वो याद दिलाया कैम्ब्रिज यूनियन का। मुझे वो इवेंट मेरे को याद है अभी भी, जब आप आए थे, हम सब मिले थे आपसे उस दिन। एंड जैसा आपने बोला, आपके स्टूडेंट्स भी उस समय थे मौजूद वहाँ पे, उनको भी सुना हम लोगों ने। तो आनंद जी, कुछ सवाल भी ले लेते हैं लोगों के। हमारे पास कई सारे सवाल आए और कुछ सवाल उनमें से हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो एक सवाल है आनंद जी, भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस से डॉक्टर साधना सिंह जी का, जो हमारे आज के संवाद विषय से बहुत ही प्रासंगिकता रखता है। हम कैसे अपने आपदाओं के समय में अपने अवसरों को तलाश सकते हैं, और इसी संदर्भ में वो कौन सा गुण है जो हमारे व्यक्तित्व में होना चाहिए, जिससे हम अपनी चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। बहुत अच्छा पूछा। जैसे देखिए, हम कैम्ब्रिज नहीं जा पाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि कैम्ब्रिज के प्लेटफॉर्म पर बात हो रही है, लेकिन नहीं गए, ये प्रेरणा का स्रोत बना। तो आपको ये गुण होना चाहिए कि अपनी कमियों को, खामियों को कैसे मजबूती में बदला जाए। इसके लिए सबसे बड़ी बात है ना कि आप में आयरन डिटर्मिनेशन, जिसको हम लोग दृढ़ निश्चय बोलते हैं, दृढ़ इच्छा बोलते हैं, होनी चाहिए कि नहीं, बदलाव आएगा। और साथ साथ पेशेंस भी, आप मेहनत कर रहे हैं, आप में लगातार मेहनत करें, लेकिन सफलता हो सके तुरंत नहीं मिले, लेकिन अगर आप पेशेंस बनाए रखें तब सफलता जरूर मिलेगी। बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी। अभी देखिए, हम लोग आज तक 1 रुपया किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कोई चंदा नहीं लिया, चाहे मुकेश अंबानी साहब हो, आनंद महिंद्रा साहब हो, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो, या हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो नीतीश कुमार जी, या उसके अलावा तमाम लोग, कृष्णा शर्मा जी जैसे लोग तक भी बोले कि भाई आप कुछ लीजिए, मदद मैं क्या कर सकता हूं। कैम्ब्रिज में मैं गया हुआ था, वहां भी एक बड़ी जनता का समूह ने कहा खड़ा होकर कि मुझसे क्या मदद लेंगे आप, मुझसे क्या मदद लेंगे।
लेकिन हमने किसी से कोई मदद नहीं ली। अपने बलबूते पर कहीं कुछ बोलकर, कुछ लेक्चर देकर, कुछ ट्यूशन पढ़ाकर जो आमदनी हुई उससे हमने अपने परिवार का और 300 बच्चों का खाने खर्चे का जिम्मेवारी ली। मेरा भाई प्रणव इस मुहिम में साथ दिया। बावजूद इसके कई लोग हैं जो जीवन से हारे हुए, निराश हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनको लगता है कि किसी को बदनाम करके, किसी के जीवन में तबाही लाकर ही वो रस लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे 2-4 लोग मुझे बहुत कष्ट देने का काम किया, मुझ पर हमले करवाए, 3-3, 4-4 बार हमले हुए। लेकिन मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे 4 कमांडो दे रखा है सुरक्षा के लिए पिछले कई साल। हमारे भाई पर, प्रणव पर फिल्म रिलीज के समय रुकवाने के लिए हाईवा ट्रक चढ़ा के उसकी हत्या का प्रयास किया गया। आज भी केस की जांच उस तरह से नहीं हो रही। हम पर कई झूठे मुकदमे किए गए, चाहे वो गुवाहाटी कोर्ट में किया गया, पटना हाई कोर्ट में किया गया, हर जगह किया गया। लेकिन क्या हुआ, हर जगह रिजल्ट आया कि भाई जब मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ पैसा नहीं लिया, तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। हर जगह केस डिसमिस हुआ। लेकिन परेशानी करने का लोगों ने काम किया। लोगों ने ईमेल देते, कहीं भी मैं जाता हूं उसके पहले ईमेल देते, कई तरह की चीजें होती है। लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर आप चुनौतियों का सामना करिएगा तो ऐसे लोग 2-4 मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाले लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे। तो जहां आपकी चुनौती है उसमें देखिए कि पॉजिटिव चीजें क्या है, तो आपको पॉजिटिव चीजें ज्यादा नजर आएंगे। पॉजिटिव लोग बहुत भारी संख्या में होंगे और उसके रिस्पेक्ट में जो चीजें निगेटिव है बहुत छोटी नजर आएंगी। तो जो हमारे सोसाइटी में पॉजिटिव चीजें, उनको ध्यान दीजिए, उनका अनुसरण करिए, उसको फॉलो करिए और देखिए आने वाला कल हम ही लोगों का होगा, आप ही का होगा। Okay, thank you, Anand ji, for answering. And over to you, Mona Puri ji. सर, आप अभी बता रहे थे, जैसे बात भी हो रही थी, आप कैम्ब्रिज नहीं जा पाए, तो सो डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर द गवर्नमेंट कि कोई पॉलिसी में क्या करना चाहिए सो दैट द स्टूडेंट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी, तो वो अपॉर्चुनिटी छूटे नहीं उनसे? बहुत अच्छी बात आपने कही। जो भी सवाल जिनके तरफ से भी आपके पास आया है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि ये अपॉर्चुनिटी हमारी तो छूट गई, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली लोग और बहुत भारी संख्या में हमारे देश भारत में है, बहुत मेहनती, बहुत जज्बाती, बहुत जोशो खरोश वाले। तो हमारे सरकार ने बहुत अच्छे पॉलिसियां बनाई है, बहुत अच्छी पॉलिसियां बनाई है। राइट टू एजुकेशन, नीतियां बहुत अच्छी है, नियत साफ होनी चाहिए। हमारे स्कूल के जो लोग होते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, राइट टू एजुकेशन को फॉलो नहीं करते, वंचित समाज के बच्चे पीछे छूट जाते हैं। तो वहां पर सख्ती की जरूरत है। और साथ साथ हमारा नेहरू फाउंडेशन है या गांधी फाउंडेशन करके, वो बहुत सारा, ज्यादा सतीश जी बता पाएंगे, बहुत सारे स्कॉलरशिप देते हैं लोग, तरह तरह की मददें करते हैं कैम्ब्रिज पहुंचने के लिए। उसकी जानकारी बच्चों तक होनी चाहिए। और फाइनली मैं ये बोलूंगा कि सतीश शर्मा जी जैसे लोग जो कि अपना सर्वोच्च निछावर करके चाहते हैं कि भारतीय सोसाइटी के बच्चे जो भी हो पूरे देश में, उनकी मदद करें और उनको उच्च शिक्षा उनके तक पहुंचाया जाए, उनको उस मकाम तक पहुंचाया जाए। ऐसे लोगों को सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार से मेरी विनती है, गुजारिश है कि ऐसे होनहार नौजवान को बुला के एक समिति बना के और भी देश में क्या अच्छा किया जा सकता है जिससे हायर एजुकेशन के लिए लोग जा पाए और वापस गिव बैक टू सोसाइटी कर सके। थैंक यू सर। कृष्णा जी, काइंडली टेक अप द क्वेश्चन प्लीज। यस, धन्यवाद आनंद जी, आपके सपोर्ट के लिए, इस कार्य के लिए जो हम कर रहे हैं। आपके ही जैसा आपके वैल्यूज रहे हैं, आपने सेल्फलेस सर्विस जो की है, वैसे ही हमारा कुछ इरादा था यहाँ पे कि इंडियंस के लिए कुछ करा जाए। उसी के चलते हमने इंडियंस के लिए यहाँ पर अपने पैसे लगाकर हमने उनके लिए वेलकम करना चालू किया। उनके लिए खाना बनाते हैं हम हर साल, उनको खाना बना के सब इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट्स को हम वेलकम करते हैं। तो वही आपसे वैल्यूज हमारी यहाँ पे भी यूज हो रही हैं सारी, कैसे हम अपने लोगों की सहायता उनके लिए सर्व कर सकते हैं बेसिकली उनके लिए। तो हमारे एक आनंद जी कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट हैं निशांत बोमया, उनका आपसे सवाल है कि ऐसा कोई माध्यम है जिसके द्वारा हमारे स्टूडेंट्स और एलुमनाई किसी तरह से आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाने, मेंटर करने या फिर कैम्ब्रिज जैसी विदेश यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए अप्लाई करने में सहायता कर सकते हैं?
बहुत अच्छी बात बोली। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछली दफा मैं गया था कैम्ब्रिज में, तो परिधि मिली थी, वो मैथमेटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी हमारी मुलाकात करवाई थी, तो उन्होंने भी ये बात मुझसे रखी थी। और आप निशांत जी, आप बात रख रहे हैं, तो प्रोग्राम के बाद थोड़ा माहौल अच्छा होता है, तो हम लोग जुड़ते हैं, आपसे सीधा संवाद रखते हैं और प्रयास करेंगे कि हर साल एक आध दो बच्चों को कम से कम हम आप तक पहुंचाएं, और आप उनको इस तरह से मोटिवेट करिए, तैयार करिए कि आने वाला नोबेल प्राइज विनर हमारा ही देश का बच्चा हो। हम लोग जरूर मिलजुल कर काम करेंगे। और अब तो वर्चुअल पढ़ने पढ़ाने का ये कोविड के चलते हम लोग सीख गए हैं, जमाना आया है, उसका भी लाभ उठा के आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग बच्चों को मोटिवेट करें, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी संभव है पढ़ाएं, और उनमें एक उम्मीद जगाएं, उनकी प्यास को और प्रबल करें, ताकि उनमें ऐसी इच्छा जागृत हो कि वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भरने के लिए तैयार हो। धन्यवाद आनंद जी। हम इस पे निशांत दुमैया के साथ बाद में प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, एंड वर्क कर सकते हैं इस पे। तो अगला, हमारे देश में पहले से गुरुकुल की परंपरा रही है, और आपके सुपर 30 प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही देखा गया है। तो कबीर कुमार भारतीय विद्या भवन से पूछ रहे हैं कि वो कौन से गुण हैं जो एक शिक्षक को एक महान या प्रभावी शिक्षक बनाते हैं। देखिए, आप कितनी भी प्रयास करिए, आप महान नहीं बन जाते। महान वर्ड छोड़ दीजिए, आप हमेशा ये सोचिए कि आप अपने विद्यार्थियों का दिल कैसे जीत सकते हैं। यहाँ कार्यक्रम में काफी कम टाइम था, वरना हम लोग आजकल जो भी वेबिनार करते हैं उसमें सुपर 30 के सक्सेसफुल बच्चों को जो आज देश विदेश में हम लोग रखते हैं, तो उनमें वो जज्बा भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आपकी चिंता होनी चाहिए उस विद्यार्थी और बच्चे से ज्यादा कि इसकी सफलता के लिए हम क्या करें। अब चुपचाप अपने अंधेरे में पड़े रहने के बावजूद, दिक्कतों के बावजूद, मुश्किलों का सामना करने के बाद आपके मन में दिन रात ये भाव आना चाहिए कि मैं बच्चों को क्या सिखा सकता हूं, बच्चों को कितना मोटिवेट कर सकता हूं, बच्चा खुद से कुछ अच्छा करे। तो बच्चों के जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को लगाइएगा, तो बच्चे में वो जज्बा पैदा होगा कि वो धारा के विरुद्ध बहते हुए विपरीत परिस्थिति में भी पत्थर का सीना तोड़कर दिखा देगा कि वो आपका शिष्य है और आपको सम्मान दिलाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज है हम सबके लिए। ओवर टू यू मोना जी। Thank you, Krishna ji, and thank you, Anand sir, and thanks for Kabir ji, who has asked such a beautiful question, and on such a beautiful occasion that is the eve of Guru Purnima, and we are meeting great personalities and a gathering of teachers who are worshipped and are the pillars of the nation. I just would like to say a few lines about that. What it's rightly said, जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, नए युग के निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम। ओवर टू यू कृष्णा जी। तो आनंद जी, बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ, जीएस ब्रोसिस इंटरनेशनल एलएलपी से प्रशांत कुमार स्वर्णकर जी का आपसे सवाल है कि आज के दौर में सफलता की कुंजी क्या है? सफलता की कुंजी या जो भी मंत्र कहें, वो हम लोग बच्चों को जो सिखाते हैं, 4 मंत्र सिखाते हैं कि देखो बच्चे, चाहे आप फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो, चाहे फिल्म मेकर बनना चाहते हो, नया रिसर्च करना चाहते हो, या पढ़ाई में मन लगाना चाहते हो, 4 बातों का ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप में प्रबल प्रयास होनी चाहिए, थ्रस्ट होनी चाहिए। अब देखिए, सतीश शर्मा जी जैसे लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश से बड़े शहर में, वहां से फिर ऑक्सफोर्ड, फिर कैम्ब्रिज, उनमें एक प्यास थी कि एक इंडियन कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा किया जाए, जहां सब अपनी बातों को रख सके, जहां आपसी प्रेम बढ़ पाए। तो प्यास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके दिमाग में दिन भर उस बात का चलना जरूरी है जिस उद्देश्य के लिए आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी, आप में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तमाम दिक्कतों के बाद, मुश्किलों के बाद भी संस्था चलती है, तमाम मुश्किलों के बाद भी मिशन कामयाब होता है। तो आप सकारात्मक सोच से भरे रहिए, कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग को जाने नहीं दिए। हमेशा सोचिए कि जीत हमारी होगी,
और तीसरी बात है अथक प्रयास। अब देखिए, मैं चूंकि इस मंच पर हूं, आपके सामने जीता जागा एग्जाम्पल है शर्मा जी, इसीलिए हम बता रहे हैं कृष्णा जी के बारे में कि जब मैं कैम्ब्रिज सोसाइटी में गया था यूनियन में बोलने, तो सबसे पहले इनका ही फोन वहां पर आया। इन्होंने मेहनत की और फिर मुलाकात करने जिस होटल में ठहरे हुए थे वहां इन्होंने, या कैम्ब्रिज के कैंपस में होटल था वहां पर, या प्रोफेसर हॉस्टल के वहां, तो वहां इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने काफी देर तक बात की, फिर कार्यक्रम में हमारे साथ रहे, फिर कार्यक्रम के बाद भी रहते मेहनत करते अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, लोगों से रिलेशन मजबूत करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो। तो मेहनत तो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इन तमाम चीजों के बावजूद कि आप में पॉजिटिव थिंकिंग भी है, ट्रेमेंडस थ्रस्ट है, कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क कर रहे हैं, बावजूद इसके आप में ग्रेट पेशेंस होना चाहिए, असीम धैर्य होना चाहिए। लाख कोरोना का संकट हो, लाख मुश्किलें हो, लाख लोग आपको गिराना चाहते हो, लाख परिस्थितियां आपको मजबूर करती हो, फिर भी आपका जज्बा, आपका भीतर का स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। बगैर मुश्किलों से प्रभावित होते हुए आप लगे रहिए, परेशानियों को धीरे धीरे इग्नोर करिए। अगर आप धैर्य बनाए हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन धैर्य टूट जाता है आदमी का, लेकिन आप सोचिए कि रात जितनी गहरी हो रही है, अंधेरी हो रही है, सवेरा के आप उतने करीब हो रहे हैं, इस भाव से लगे रहिए, तो सफलता जरूर मिलेगी और बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। धन्यवाद आनंद जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। निरंतर प्रयास करना, और आपके इस सराहने को जो हमने कार्य किया है अभी तक, इसी को ध्यान में रखते हुए आगे भी हम अपनी सोसाइटी का कार्य ऐसे ही चालू रखेंगे, एंड सो दैट वी कैन हेल्प और सर्व मोर पीपल। एंड आनंद जी, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हुए, आनंद जी, हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, परंतु बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। इसी वजह से काफी विद्यार्थी हायर एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो वीआईबी बेल्जियम से पारुल मेहरोत्रा का इस संदर्भ में आपसे वो जानना चाहती हैं कि आपका इस मसले में क्या सुझाव या सोच है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये सुविधाएं तो बहुत सीमित है, लेकिन सीमित संसाधनों से, सीमित जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके एप्लीकेशन से, उसकी यूज से भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। ये छोटा सा एक प्रयास मेरा सुपर 30 था। लेकिन मैं जानता हूं कि जो आपने बेल्जियम से सवाल पूछा है, या फिर आप कृष्णा जी हैं, या जो वरुण जी है, तमाम लोग जो अमेरिका, यूरोप, लंदन में है और हमसे बातचीत कर रहे हैं, सब तमाम लोगों में असीम क्षमता है। आप अपना अपना थोड़ा दिमाग दे, थोड़ा समय दे, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। इतना आसान भी नहीं है कि मैं कह दूं कि किसी के पास मोबाइल नहीं, आप ये काम कर दे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। सोचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। आप लोगों का जैसे भारतीय सोसाइटी, उस सोसाइटी को और बड़ा करना पड़ेगा। तमाम यूरोप, अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोग, सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, और सरकार से बात करनी होगी। जो भारत में कई एनजीओ चला रहे हैं, सामाजिक संगठन चला रहे हैं, उनसे बात करनी होगी, तब एक बड़ा क्रांति आएगा, और सच में फिर एक बार हमारा देश भारत सोने की चिड़िया होगी। धन्यवाद आनंद जी इसका जवाब देने के लिए। अगले तरफ बढ़ते हुए, ये मेरा आखिरी सवाल है जो हमें आया है स्टूडेंट से। तो हमारे ही एक स्टूडेंट स्मृति खेमका जी का सवाल है, जो एजुकेशन में ही पीएचडी रिसर्च कर रही हैं। उनका सवाल है कि हमारे विभिन्न समुदायों के बीच बढ़ती असमानताओं को ध्यान में रखते हुए इस कोविड-19 के दौरान एवं इसके बाद विद्यार्थियों को निरंतर शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। देखिए, हमारे सोसाइटी का ये माइनस है कि हमारे देश में बहुत लोगों की ऐसी सोच है, सबकी नहीं है लेकिन कुछ लोगों की सोच है, उस सोच के तहत वो सामने वाले की पहचान जाति या धर्म के आधार पर करते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत निगेटिव बात है। मैं देखता हूं कि अमेरिका में अगर किसी ब्लैक के साथ कोई खराब व्यवहार किया जाता है, कोई गलत होता है, तो पूरा यूरोप, अमेरिका के व्हाइट लोग भी उसका साथ देते हैं। लिंग भेद, धर्म भेद सब छोड़कर साथ देते। तो आज जरूरत ऐसी है, उसकी मुहिम, उसकी शुरुआत हम लोग जैसे लोग ही मिलके कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बात को हमेशा ख्याल में रखें। वो लड़का चाहे दलित परिवार का हो या ब्राह्मण परिवार का है, अगर उसमें मेरिट है और अगर उसकी जरूरत है,
तो जरूरत उसकी जरूर पूरी होनी चाहिए। हम लोगों को मदद करनी चाहिए बगैर जाति और धर्म के प्रवाह किए। धन्यवाद आनंद जी। Over to you, Mona ji. Thank you, Krishna ji. So there is a question coming right in the chat box. Some Miss Prabjot Kaur is asking, like, please share the tips to be motivated, and that too in this negative environment. What will be the tips of motivation? देखिए, आप हम ही को देख के मोटिवेटेड नहीं हो रहे, सच बताइए। तो हमारे जैसा आदमी जो कि आज एक लगभग स्लम इलाके में बैठा हुआ है, पीछे एक पर्दा कर्टेन लगा हुआ है, एक मामूली घर में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मोटिवेशन से भरे हुए। कब हमला हो जाए बाहर निकले कोई भरोसा नहीं, कब माफिया इस कोरोना वायरस में भी कोई नया मुकदमा कर दे कोई भरोसा नहीं। बावजूद इसके हम लोगों में एक इच्छा है, क्योंकि अपना अनुभव रहा है ऐसा कि अगर आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपने इरादों को मजबूत करेंगे, तो आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए आप इस बात को, सफलता का मतलब ये नहीं है कि जॉब या तो बहुत बड़ी रकम आपके पास। सफलता का मतलब है आप दूसरों को कितनी खुशियां दे सकते हैं, और फाइनली आप उसी वक्त खुश होते हैं जब आप दूसरे को खुशी देते हैं। सतीश जी बहुत खुश रहते होंगे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब कोई बच्चा किसी क्राइसिस में आता होगा, किसी कष्ट में कैम्ब्रिज में आता होगा, इनके सोसाइटी में पहुंचता होगा और 10 लोग मिलके मदद करते होंगे, तो बच्चे की चेहरे को, मुस्कान को देख के जो खुशी होगी उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई काट नहीं। तो आप अपनी खुशी के साथ साथ दूसरे की खुशी का ख्याल रखिएगा तो खुशी वहां से मिलेगी। खुशी और आनंद एक ऐसी चीज है ना कि जो दूसरे को देने से मिलती है। तो हमेशा इस कोविड-19 के माहौल में आपके साथ समस्याएं हैं, कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचिए जो मजदूर के बच्चे, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि एक इंसान पूरी गरीबी को, देश को खत्म कर दे, लेकिन अगर आप एक बच्चे को भी खाने की व्यवस्था कर दिए, एक परिवार की भोजन की व्यवस्था कर दिए, और वो लोग खाना पीना खा के 1-2 दिन भी आराम करेगा, तो उसके चेहरे की खुशी, उसका पूरा प्रभाव आपके जीवन में खुशियां लाएगी। तो खुशी कहां से मिलती है ये समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। सर, आपने कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, MIT, ये सारे इंस्टीट्यूशंस में आपका जाना हुआ है, और कैम्ब्रिज तो 500 years old and it has alumni all over. सर, हमारे देश में भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं है जिसका नाम टॉप 10 या टॉप 200 स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशंस में ग्लोबली आए? देखिए, दरअसल में क्या है ना कि हम लोगों के यहाँ रिसर्च नहीं है। कोई बच्चे की, कोई स्टूडेंट की पहचान सिर्फ इसलिए होती है, अखबारों में, मीडिया में खबरें इसलिए आती कि उसको कितना रुपए का पैकेज मिला। ये कभी हमारे देश के संस्थान का प्रयास उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए कि बच्चे ने नया पेपर कहाँ लिखा, क्या मैथमेटिकल गजट में उसका छपा, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी में पेपर छपा, उसको उसका वेबसाइट पर तारीफ हो, उसको सम्मान मिले। तो जहां सम्मान की कमी हो जाती है ना, वहां चीजें बदलती है। तो जब तक पैसे पर आधारित कैरियर होगा तब तक बहुत कुछ नहीं हो सकता। मैं गया, कैम्ब्रिज गया, 2 बार गया, वहां पर कैंपस में 2 दिन बिताए, हर बार 2 दिन बिताया, देखा प्रोफेसर्स के साथ खाना पीना किया, कई लोगों के साथ देखा, उन लोग का लाइफ है, उन लोगों की प्रतिष्ठा है, उन लोगों का सम्मान है, उन लोगों की जिंदगी है। तो जब तक ऐसा जुनून हमारे शिक्षकों में नहीं आएगा, उनकी सोच नहीं बदलेगी, और जब तक हम विद्यार्थी, उनके पेरेंट्स ये नहीं सोचेंगे कि बच्चा नया क्या करता है, तो जब तक कुछ नया नहीं होगा, नया रिसर्च नहीं होगा, नया इनोवेशन नहीं होगा, तब तक हमारे संस्थान की पहचान नहीं बन सकती है। हम लोगों का भी इतिहास है, बिहार जैसे जगह पर कैम्ब्रिज से भी पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय है, वहां भी नई चीजें होती थी, नई पढ़ाई होती, लेकिन आज वो जर्जर स्थिति में है। दोबारा उसको रिवाइव करने का प्रयास चल रहा है। तो वहां रिसर्च कितना होता है, कितना नई चीजें होती है, कितना वहां से निकल के चीजें सोसाइटी को प्रभावित करती है, ये महत्वपूर्ण। Thanks a lot, sir. Again, I think so, Krishna ji, how much time do we have? Because again, there are questions coming up. If you say we can take one last question, or otherwise we can sum it up right now, as you say, what the time permits. Sure. आप एक और क्वेश्चन ले लीजिए, and then उसके बाद, like after that we can wrap it up.
There's a Anand sir, there's a question that Indian schools में या teachers का IIT level syllabus वो पढ़ाते हैं या board syllabus पढ़ाते हैं, teachers पूरा पढ़ा नहीं पाते हैं, उनकी problem को कैसे solve करें कि बच्चे फिर coaching join करते हैं. और इसी के साथ मेरे से लगता हुआ जो पहले मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कैम्ब्रिज के या हमारे यहाँ आपने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, तो ये काफी क्वेश्चन सब मिल के आते हैं कि we would also like to have Nobel Prize winners in our country. So what should we do? हाँ, बहुत अच्छा सवाल और आखिरी सवाल बहुत अच्छा है. जो भी पेरेंट्स ने ये सवाल पूछा है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शिक्षकों का सम्मान करना सीखें. गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर हम लोग बात कर रहे हैं, भारतीय सोसाइटी, भारतीय संस्कार की बात हो रही, तो गुरु को सम्मान दें. हो सके कि कोई गुरु हो, कोई टीचर हो, उतना चीजों को नहीं बता पाते हो जितनी जरूरत हो, लेकिन फिर भी उनके यहाँ कभी फल लेके चल जाए. कल गुरु पूर्णिमा एक प्रयोग तो करके देखे, उनके यहाँ थोड़ी मिठाई पहुंचा दे. अगर मिठाई नहीं पहुंचा सकते हैं कोरोना संकट में तो फोन करके ही उनको वीडियो कॉल के चरण स्पर्श करे. उनको भी मोटिवेशन की जरूरत है. आज हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे शिक्षकों का सम्मान घट रहा है. आज सोसाइटी में, हमारे इंडियन सोसाइटी में बिजनेस बनाया जा रहा है शिक्षा को. तो इससे हटकर अगर आप शिक्षकों का सम्मान करेंगे, अपने बच्चों के साथ साथ शिक्षकों का भी हौसला बढ़ाएंगे, तो जरूर मोटिवेटेड हो कि अपनी वो पूरी ताकत लगाएंगे, पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनेगा और हो सके आपका बच्चा ही अगला नोबेल प्राइज विनर बनेगा या आने वाले समय में नोबेल प्राइज, फील्ड मेडल जरूर लेगा. Thank you, Anand sir. And over to you, Krishna sir, just for the closing remarks. थैंक यू. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद जी और मोनापुरी जी. एंड दर्शकों को मैं बता दूं, कभी कभार आनंद जी मुझे प्यार से सतीश शर्मा जी भी बुलाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. दोनों एक ही हैं. कृष्णा जी, सतीश शर्मा जी. सतीश शर्मा जी मेरा दिया हुआ नाम है. यस तो यस, कृष्णा शर्मा जी, सतीश शर्मा जी दोनों चलता है. बिल्कुल. And so basically just some concluding remarks. Thank you. So after a very insightful question and answer session with Sri Anand Kumar ji, wherein he and Mona ji shared their valuable views and inputs with us regarding a number of social issues, we have come to the conclusion of today's webinar. On behalf of the Cambridge University Bharatiya Society, I would like to thank Sri Anand Kumar ji and Mona Puri ji for taking out their time and sharing their pearls of wisdom with us. It was a wonderful session. We are sure that the knowledge and wisdom shared by them on this platform today will go a long way in encouraging our participants to explore further innovative ways in order to contribute to the society and in turn the global community. I would like to thank all of my committee members for their support, and especially some non-committee members to whom I'm grateful for the support are Mr. Ashish Gupta, Smriti Khemka, Vishal, and my parents. And we would also like to thank all the participants who joined us today. And we look forward to your active participation in our forthcoming events. I would like to tell you that we had about 300 registrations, and we apologize that we could not actually take everybody in because we have a limit of 100 people on this. So we emailed the link of this session only to about 100 people, but we hope we can reach out to the rest, all the rest of you in some form, maybe through a video of this lecture or summary from today's session. We'll see to that afterwards. But thank you everyone for joining. And आपके आनंद जी और मोना जी कोई भी final remarks हो तो? मैं ही बोल देता हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगा कृष्णा शर्मा जी, आप लोगों से बातचीत करके इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद हमारे पूरे दिन याद, जो पुराने दिन थे वो याद आ गए और लगा कि मैं कैम्ब्रिज में ही पढ़ रहा हूँ, उसी कैंपस में बैठा हुआ हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ. इस अनुभूति के लिए, इस चीज का एहसास दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम सुनने वालों को भी धन्यवाद. मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में मैं और अच्छा प्रोग्राम करूंगा और दूसरे मुद्दे पर भी बात करूंगा. और कोविड-19 का माहौल खत्म हो जाएगा तो कृष्णा शर्मा जी की तरफ से इनविटेशन है, मैं कैम्ब्रिज में भी आऊंगा और प्रोग्राम करूंगा. बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया.
बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी और मोना जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा और आपके साथ आज वार्तालाप करके बहुत ही मजा आया, और आपके सारे वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए, सजेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम आशा करते हैं आगे भी जल्दी ही हम मुलाकात करेंगे जैसा आपने बोला। धन्यवाद। Thank you very much. Thanks a lot. थैंक यू।